पहले हो जाए। I forgot it. हो जाए। बड़ा मीठा लग रहा है आज क्या? It's very sweet today. Sweet laughter, salty laughter, bitter laughter. Laughter has also many forms. But today's meditation at the sea beach was really good. Really good. It will be better if I repeat the same thing today again, though I will not speak, but I will be speaking. I will not be speaking, but still I will be speaking through the cassette. Yesterday it was recorded, so you can play that. And let us do once more here in imagination, so that it becomes more permanent in your clarity, in your mind, and you don't forget and continue. And remember two things. One, remain totally passive. Don't hold, don't control. Just remain passive. Whatsoever. Many things will start happening. They have already started. The silence has started working. You will see the miracle of passivity. Don't control, but remain rooted and centered. Feelings, thoughts, desires, so many things slowly may start appearing. Let them appear. Don't justify. Don't be afraid at all. Nothing is going to be wrong. Allow them. Let them appear. They are hidden. One is a vast palace, many rooms, many living rooms, many bathrooms, many porches. But one does not know what one is. Slowly, you will be meeting new friends. Maybe sometime anger. No, anger is a friend. But we don't like. And we are taught not to be angry. We are taught not to express anger. Because we cannot express anger, that is why we start suppressing it. So it is suppressed. And all the brothers, sisters of anger are suppressed. So they will be coming one by one sometime together. Don't be afraid. They are not bigger than you and they are not going to harm you at all. Allow them to appear
and let them disappear also. They will be coming, they will be going. They will stay for a while, maybe sometime little longer. All emotional stuff, I call it furniture. Sometimes there is a big furniture and sometimes there is small furniture. Sometimes it takes time to throw it out. If you remain passive, not doing anything, not struggling, not getting involved in any way, remaining totally passive, it will disappear. It will leave the palace. The more the palace is empty, the more happy you will feel. So first thing, remain passive, this is the clue. Second thing is, remain rooted and centered. If you remain passive, witnessing is spontaneous. Because the very nature of passivity is witness. There are two kinds of passivity. One is in deep sleep. So I am not talking about the deep sleep. I am talking about the waking state. So in waking state, if you just remain passive, because all the activity happens through the conscious mind. Conscious mind means doer mind. The mind who makes a decision, the mind who controls, the mind who manipulates, etc. So conscious mind is gone on a holiday for 21 days. So in these 21 days, passive mind, female mind, a woman mind is allowed. So let her dance. Don't be afraid. Osho has promised me. He is going to be here for 40 days. He is there taking care of you, sir. Take my word. I'm not joking. I'm very serious in this. Osho. And second thing, this is the first thing, remain passive and rooted. Second thing, I forgot. What is that? Yes, came again. While meditating on the seashore, don't allow your mind to get bored. Mind has a tendency, it enjoys first time, maybe 2 times, maybe 3 times, then it starts getting bored. It starts escaping. It starts finding excuses not to do. So don't allow that boredom thing. Go on enjoying. Don't get excited. Remain peaceful, silent, witnessing. And today it was really good. More and more good it will become each day as each day passes. Don't get bored. Do it for 21 days. And this is the right thing has happened, which I was not even aware of, that why we are coming at the seashore. So now the camp is in Goa at the seashore, and the right meditation is happening. It will help you like a lot. Don't get bored. Remain rooted. Allow whatsoever erupts. Allow it. Don't hold. Don't control. Remain as you are. And unfocused, which I told you. Just remain unfocused. Loose and natural. Loose and natural. And everything, every moment will become a blessing. So now we listen to the
guided meditation. Close your eyes. बुद्धि को हमने 21 दिन के लिए, सक्रिय मन को 21 दिन के लिए अवकाश दे दिया। शिथिल, बिल्कुल शिथिल, फोकस नहीं होने दे अपने आप को, कहीं भी केंद्रित नहीं होने दे। जैसी याद है कि केंद्रित हो गए हो, अकेंद्रित हो जाए। और जो हो, अगर आप निष्क्रिय बने रहते हैं तो उसका साक्षी रहेगा ही। मैं ये नहीं कहूंगा कि साक्षी हो जाए। होने में जैसे आपको लगता है कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ करना ही नहीं। जागे हुए हैं बस इतना काफी है। और जागे हुए होना तो एक स्वाभाविक अवस्था है, इसमें आपने कुछ किया नहीं। जागे तो जागे, इसमें कुछ करना नहीं। करना तभी होता है जब आप सक्रिय होते हैं। सक्रिय जब होते हैं तो चेतन मन शुरू हो जाता है। अचेतन मन को, अवचेतन मन को अवसर देना है कि वो धीरे धीरे प्रकट हो, और वो प्रकट होगा तो तरह तरह की भावनाएं, विचार, इस तरह की वस्तुएं जो कि कबाड़ खाने में बहुत दिन से पहले से पड़ी हैं, वो धीरे धीरे बाहर आएंगी। कहो तो जीव जंतु आएंगे। मैं फर्नीचर कहता हूँ ताकि आपको डर न लगे। अब उनके सांप पीछे आएंगे तो जरा डर लगेगा ना, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन वो आएंगे, और कई तो मोटे मोटे होंगे, ताजे ताजे होंगे कई छोटे मोटे होंगे, कई मध्यम दर्जे के होंगे। और कई बार छोटे छोटे नहीं होते, वो जब काटते हैं तो खूब जोर से काटते हैं लेकिन आप ऐसे पड़े रहो जैसे मुर्दे हो। मुर्दा सक्रिय नहीं होता, निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय बने रहना पूरी अवस्था में, उठते बैठते खाते पीते सब मरमरा गए हैं। देखो जरा क्या आता है। वो कहते ना, मरो ही जोगी मरो। ऐसी मरनी मरो कि मरने से पहले मर जाओ। ये मरने से पहले मर गए तो फिर कोई मार नहीं सकता, किसी का बाप नहीं मार सकता। शिथिल, निष्क्रिय, कोई एटीट्यूड नहीं। जो हो रहा है सो हो रहा है, जो आता है आए, जो जाता है जाए, जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो। ये जीवन का नियम है, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है। बराबर जो पैसे आपने 31,000 रुपये मेरे को दिए हैं, कल तक किसी और कहते हैं जो कल तक किसी और के थे, फिर आपके हो गए, फिर मेरे हो गए, फिर वो किचन वाले के हो जाएंगे। परिवर्तन जीवन का नियम है। परिवर्तन को जानने वाला भीतर साक्षी मौजूद है। वो साक्षी होना नहीं है, होने में ऐसा लगता है कि मेरे को होना, वो मैं गया तेल लेने, मैं है ही नहीं। निष्क्रिय बने रहोगे, साक्षी अपना आप रहेगा, कहाँ जाएगा, उसका काम है। जब कोई दृश्य होता है, देखने को कुछ भी हो, साक्षी को वहां रहना नहीं पड़ता। हकीकत यह है कि दृश्य जो है वो साक्षी को पैदा करता है। एक विचार चला, एक भाव चला, कुछ भी चला, वो एक तरफ इधर चलता है, पीछे से साक्षी को खड़ा कर देता है। समझ में? ये जिस दिन समझ में आएगा तो समझ में आएगा तो एक ही खेल है, ये खुद ही प्रेमिका है, खुद ही प्रेमी है, खुद ही प्रेम में लगा हुआ मामला। अजीब है कुछ। ये भीतर जो त्रिपुटी है, यही तो खेल है परमात्मा का, यही लीला है। वो एक ही है, वो तीन नहीं अनेक बन जाता, उसमें अनेक बना बड़ा मजा आता है। वो कहीं भगवान दास भारती, कहीं भोला, कहीं टोला, बहुत रूप धारण करके, और बकरी बकरी किस्म से खेल करता है। जिस दिन समझ में आ गया, हंसोगे बैठ के, साक्षी रहेगा, चिंता नहीं करनी, फोकस नहीं करना, जो हो उसको होने देना है, अलाउ, दबाना नहीं। और उसके साथ राज भी नहीं रचाना। कई बार कोई अच्छी चीज होने लगती है, गर्लफ्रेंड मिल जाती है अंदर अंदर,
बस फिर मजा करने लगते हैं उसे, नहीं वो भी नहीं करना, रोकना भी नहीं है, निष्क्रिय बने रहना। निष्क्रिय बने रहे सब हो गया, और निष्क्रिय बने रहने में सिर्फ एक स्मरण और तो कुछ नहीं, जस्ट रिमेम्बरिंग, एक्टिव नहीं होना। सागर किनारे जाके ये ध्यान जो आज आपने किया है वो बहुत अच्छा होगा, इसको करते रहना है। एक बात और याद रखनी है कि ध्यान कोई भी हम करते हैं, एक दो दिन बड़ा अच्छा लगता है, नई नई टेक्निक बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, फिर तीसरे दिन बासी होने लगती है, चौथे दिन तो लगता है यार ये तो वही भिंडी है 4 दिन से गा रहा हूं। वो भिंडी सही लेकिन रस ले लेके खानी है, बोर नहीं होना, समझे? क्योंकि बोर हो गए तो मन फिर हावी हो जाता है, और मन को हावी नहीं होने देना, रस लेना, करते रहना, पूरे 21 दिन करना। इतनी बातें मैंने अंग्रेजी में करी थी, अब कुछ भूल गया हूं, आपकी किस्मत। ठीक है, वो सुनना 10 मिनट का पीस। कल मैंने सूफी समय में एक म्यूजिक के ऊपर 10 मिनट का पीस इंग्लिश में था, वो इंग्लिश में उसका मैं अनुवाद नहीं कर सकता, और वो रोज चलेगा 10 या 15 मिनट। लेकिन वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक क्या है या भारतीय संगीत क्या है, इसके बारे में उस पर चर्चा है। वो रोज 15 मिनट तक चलेगा 21 दिन, बल्कि हो सकता है और आगे भी चले, लेकिन 10 से 15 मिनट का पीस होगा रोज। उसमें बीच बीच में म्यूजिक भी होगा, उसकी वैरायटी भी होगी, और उसमें बताया कि ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है अंततः ध्यान का हिस्सा है, अध्यात्म का हिस्सा है, इसका क्या गुण धर्म है वो इस पर चर्चा है। 10 मिनट का पीस है, वापिस सुनते हैं, वो सुनने की कोशिश करो, रेजिस्ट मत करो, थोड़ा प्रयोग करके देखो, नई भाषा समझ में आती, कोई बात नहीं, रेजिस्ट मत करो, बोर मत हो, मन को मत कुछ कहने दो, तुम वो ध्वनि जो है, जो शब्द है, जो ध्वनि है, जो उसके बीच खाली जगह, उसके प्रति सजग बने रहो। तो एक तो ध्यान हो जाएगा मुफ्त में, दूसरा धीरे धीरे जब हम किसी भी चीज को उपस्थित होने लगते हैं वो समझ में आने लगती है। भीतर भाषा की जरूरत नहीं है, वहां पर ध्वनि तरंगों का खेल, और ध्वनि तरंगे जिस ढंग से भीतर जाके चोट करती हैं, अगर तुमने उसको अलाउ किया, उसको मौका दिया, तो धीरे धीरे तुम्हें पता लगेगा, तुम समझने लगेगा। मैं कोई अंग्रेजी पढ़ा लिखा थोड़ी बात कभी नहीं पढ़ी, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन ऐसी आ गई, अब किसी बार तक के मुक्के मार के चला लेता हूँ। Just listen to this piece for 10 minutes.